بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کل ہمیں کوشچن پوچھ کر تھے کہ ہم نے کو جو کچھ بھی ہم نے کو تکلیفاں ہوتی، ڈپریشن ہے ہمارے، اس میں مصیبتاں زیادہ آتی ہیں، پریشانیاں، یہ سب بھی کئی کے واسطے ہوتی ہیں۔ کر کو تین آپشن دیکھو تھے، یہ میں آپ کو نماز ایسا ہی نہیں اللہ کے طرف نہیں پلٹتے سے اس میں نماز اس میں معین کو اللہ کو ہمیں پریکٹیکل ہمیں تجھے کو تیری بندگی کرتے ہی ہمیں تیرے کو سرنڈر ہو گئے کر کو دکھانے کی چیز نماز نہیں کیا۔ اب وہ نماز میں ہمیں کو غفلت کرتی، نماز نہیں پڑھتے، نماز چھوڑالتی کہتے اس ٹائم پہ اس کی نحوست اس کا پنشمنٹ کی ہم نہیں آتا کر کو بول کو پوچھ کو تھی۔ سیکنڈ میں کو جو کچھ بھی ہمیں گناہ کرتی، جو کچھ بھی ہمیں برائیاں کرتی، یہ سب کا پاپ گناہ کی وجہ سے وہ آتا کی اور کو پوچھ کو تھی۔ اس کے بعد کو شیطان ہمنا وہ برائی کی طرف ہمنا اکساتا، برائی کے راستے میں لے لگ جاتا سکی کا۔ تو آپشنل کو سیکنڈ بی کو کریکٹ آنسر اس کا، جو کو ہمیں سورۃ الشعراء میں آیت نمبر 30 آیت میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ خدا کو بول گئی، جو کچھ بھی تم نا تکلیفاں مصیبتاں جو بھی تمہارے اوپر برائی چلتی ہے اس کا وجہ ریزن کیا کرو بولا کہ تو ہمیں کرتے سو چند گناہ کے کام، گلیس کام، شیطان کا راستہ جب ہمیں چوز کریں گے تب کو ہم کو اس کا نقصان کو ہمارے زندگی میں دکھیں گا، ایسا کر کو بول کو اللہ کو بول کو ہی اے چکو آیت۔ اب کو مصیبتاں آنے کا وجہ اللہ بول ڈالے تمہیں کرتے سو گناہ، تمہارے کرتوتاں، تمہارے برے کیریکٹرز، تمہارے برائیوں کی وجہ سے تمہیں شیطان کا راستہ اختیار کرتے اس ٹائم کو، شیطان کا راستہ چوز کرتے اس ٹائم کو تم نے اس کا افیکٹ دکھتا سوچ یہ چیز کر کو بول کو۔ اور ایک کو کیا اللہ کے رسول بولتے ہیں ہر ایک ٹائم پہ بھی مصیبت یا پریشانی کے ٹائم پہ یہ آیت کو اللہ کے رسول زیادہ پڑھتے تھے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، یعنی وہ حدیثاں ہی کئی کے واسطے یہ ایسا مصیبتاں ہمارے اوپر آتی ہیں کنا کا اللہ کے رسول یہ آیت رکھو کو بھر کو ڈیفینیشنس کو ہم اللہ کے رسول بتا کو وہ حدیثہ نیچے میں بھیجتی ہوں۔ اللہ کے رسول بولتی جب تمہیں ایک مومن فرسٹ کیٹیگری جب ایک مومن گناہ کرتا ہے، یعنی گناہ جب فرسٹ کو ایک مومن کو جب کو اس کے پر اس کے زندگی میں مصیبتاں اس کے اوپر کو زیادہ تکلیفیں آتے ہی کرو بولے کہ تو وہ کو اس کے جو گناہ پہلے انہیں کریا رہا تھا تو وہ گناہ کو دھلنے کا، گناہ کو دور کرنے کا ایک وجہ۔ اور ایک کو اب اس کے اوپر گناش نہیں ہے، یعنی انہیں گناہ چاکو کر کو توبہ کر کو اسے پاک ہوگا، پھر بھی اس کی زندگی میں اسے مصیبت آتے ہی بولے تو اس کے ایک مصیبت میں انہیں برداشت کرتا سو ایک گناہ مصیبت ایک تکلیف میں بھی انہیں صبر کر لے کو رہتا سو اس کے ایک درجے کو اللہ بلند کرتا بلکہ ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ بولتے ہیں، یعنی جب کو ہم ایک مومن کا فرسٹ اللہ کے رسول بولتے ہیں جب ایک مومن کو تکلیفیں مصیبتیں آتے ہی بولے تو فرسٹ کو انہیں جو کچھ بھی پہلے گناہ کریا ہے کہ وہ گناہ پورے دھو ڈالتے اللہ تعالیٰ، یہ تکلیف اس کے اوپر انہیں صبر کرتا سو سے اب اس کے اوپر گناش نہیں ہے، انہیں پاک ہے، اللہ کا راستہ کو کتنا ہو سکتا کہ انہیں ٹرائی کر کے اس کے اوپر چلک اور ہے بولے تو ایک تکلیف کے اوپر بھی اسے ایک درجہ ایک نیکی اللہ کو لکھیں گے، ایسا کر کو بول کو حدیث میں آتا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بولتی ہیں جب مومن کو تکلیف آتی، مومن کو مصیبت آتی، اگر ایک کانٹا بھی اسے چپکو تکلیف ہوا تو اس کے مقدر میں اس کے درجے میں اللہ کو اس کی نیکیاں اس کے درجے کو بلند کرتا، ایسا کر کو بولتا۔ اب نارمل سے مومن نہیں، اب نارمل سے ایک انسان ہے اسے زیادہ مصیبت آتی گا تو وہ جگہ میں
हमें अल्लाह को गालियाँ देखो, अल्लाह को यानी कई को मंजे दुनिया में सब भी ही कि मंजे चाहिए, गरीबी, ये बच्चे नहीं सो, अब ये बच्चे नहीं सो, पैसा नहीं सो, ये सब भी आपको क्या है हमारे लाइफ में, हमें आपको ऐसा जीना कर को सोचे रहेंगे, ऐसा रहना कर सोचे रहेंगे, वो चीज़ आपको हम ना आपको नहीं मिलती, हम ना वो मिलने के बजाय आपको पूरा भी उसके अगेंस्ट से चलता, समझ में आता। वो चाकू मुसीबत यानी मुसीबत कहते सो शॉर्टकट में क्या कर बोला कर, तो जो चीज़ हमें पसंद नहीं है, जो चीज़ हमें चूज़ नहीं करे, जो चीज़ ऐसा रहना कर को हमें सोचे नहीं लेकिन वो ऐसा रहता, वैसा हमारे ऊपर चलता रहता, वो चाकू मुसीबत, समझ में आता। यानी उसे एक्चुअली हमें पसंद नहीं करेंगे, मुसीबत कहते सो चीज़ को हमें उसे पसंद नहीं करेंगे। तब वैसे टाइम को आपको हमें आपको वो आजमाइश रहे तो अल्लाह के ऊपर आपको हमें बोलते नहीं सब्र करना हो जगह में। अगर आजमाइश आती है, तकलीफ़ा हमारे ऊपर आते ही तो वो जगह में आजमाइश है तो सब्र करना, नहीं वो गुनाह है तो अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के इसमें आपको हमें गिरजा को हमारे गुनाहों का हमें माफ़ी मांगना। जब एक इंसान के ऊपर एक तकलीफ़ की, एक मुसीबत की क्या आती उसे परेशानी आती है तो पहले हमें आपको अल्लाह को गालियाँ देना, रोना इससे करते थे, जब हमें सोच को देखना हमारे क्या की गुनाह की वजह से, हमारे कुछ की यानी क्या की गलती की वजह से ये हम ना आपको मिलता है। यानी जब हम ना एक तकलीफ़ आती है तो हमें खुशी छोना की तो अगर वो तकलीफ़ आको हमारे ज़िंदगी में परेशान होते ही तो हमारा एक एक दर्जा बुलंद होता रहता, हमें करे से गुनाह एक एक भी माफ़ हो जाता रहता। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला अच्छाई भी अगर बनाए ही, अच्छा भी एक सिस्टम में अल्लाह हमारे रखे ही तो वो भी फ़ायदा, अगर बुराई का एक सिचुएशन भी रखे ही, एक तकलीफ़ मुसीबतन का एक मौका भी रखे ही तो वो भी हमारे वास्ते अच्छा समझ में। सुबहान अल्लाह, एक गलती हमें करते ही तो ये एक हमें जो कुछ भी गुनाह करे ही यानी हमें जो कुछ भी हमें गलती करते ही कर बोला तो पहले आको हमें अल्लाह के दरबार में जाको हमें गिर को हमें अल्लाह के पास दुआ करना, यानी हमारी गुनाह की वजह से ये हमने तकलीफ है, ये गुनाह की वजह से हमने ऐसे परेशान ही हमें, तब आपको वो गुनाह कौन करे, हमें करे, लेकिन सॉल्यूशन भी अल्लाह बताते। सुभान अल्लाह, तू गुनाह करया तो तू तौबा कर, समझ में आता है क्या। जब तेरा गुनाह ज़्यादा होते इस टाइम को अल्लाह वो रिफ्लेक्शन हमारे ज़िंदगी में आपको हमें देखने शुरू कर डालेंगे। उसका क्या वजह, हमें आपको ज़्यादा बहुत डिप्रेशन रहेंगे, बहुत तकलीफ़ वाला को रहेंगे, मुसीबतें ज़्यादा रहेंगे, परेशान रहेंगे, कौन से एक चीज़ में भी हमारा दिल माइंड नहीं रखता, लेकिन वो टाइम को अल्लाह के बारगाह में, अल्लाह के पास हमें जाको अल्लाह से हमारा रिलेशनशिप हमें स्ट्रांग करते इस टाइम को ये हूँ सवाब में बदल जाएगा। वो छोड़ डाल को हमें हूँ से अलग अब एक सॉल्यूशन हमें चूज़ कर ले, अल्लाह को गालियाँ देना, बुरे रास्ते में हमें जाको इसका ट्रीटमेंट कराना, तावीज़ ये सब भी है नहीं। अब एक परेशानी होते सनी अब बच्चा नहीं, अब ये क्या है, हमें अब भी आको अल्लाह के पास अभी नज़दीक हो को, अभी क्लोज हो को अल्लाह के पास दुआ मांगने का अल्लाह मौका दिए ही हमने, ये टाइम को ये वक्त को हम ना बच्चे नहीं ही या हमारे पास पैसा नहीं है, वो कहते इस टाइम को अल्लाह इसमें से हमने क्या कि एक आजमाते ही क्या कि एक अब भी हमने इससे बेस्ट चीज़ देने सोचते ही कहने का हम ये जगह आपको सोचना, एक चीज़ हमें मंग को लेट होता तो सब्र करना, की बोलो तो सब्र करने लेट होने होने वो चीज़ अभी बेस्ट हम ना मिलेगा, ये चाको अल्लाह बोलते नहीं क्या, मैं ना को सब्र होना, हम सब्र नहीं बोले तो ये चीज़ पूरा भी आपको वेस्ट हो जाना। सब्र रहना हमारे हर एक बुराई में, हर एक तकलीफ में भी कई को किधर कर को हमें वो नोंड को हमें उसे गलती रास्ते में ले लग जाको, गलत जगह हमें जाको इसका इलाज करा को, एक परेशानी होती बच्चे नहीं माल नहीं का तो जाको तावीज़ाम बन लगो आना, ये सब भी क्या को तो गलती रास्ता समझ में आता। जब तुम्हारा अच्छा पहचान ले जाए तुम्हारे लाइफ में, जब आपको तुम्हें बहुत डिप्रेशन है, बहुत तुम्हारा तंग है तुम्हारी ज़िंदगी का इस टाइम को, ये हमारा क्या भी गुनाह की वजह है, हमें क्या की गलती करें ही उसका हम ना ये मिलता है, एक हमारे वो गलती करने की वजह से हमें आपको अच्छे बनने का एक अल्लाह मौका देते हैं,
اس میں ہمیں صبر کرتے اس ٹائم کو ہمارے درجے بلند بھی ہوتے ہیں، ہم اس کے پہلے جو گناہ کریں ہیں وہ بھی اللہ کو معاف کر لگ ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. تب آپ جو کچھ بھی ہمیں مصیبتیں ہوتے ہیں وہ ہمارے کرتوتوں ہمارے جو گناہن کے افیکٹ چاکو تب کو ہم نہ زیادہ مصیبتیں آتی کر بولے تو ہمیں ابھی خوش ہونا کی کر بولے تو ابھی ہمیں اللہ کے پاس ابھی نزدیک ہوتے ہیں، یعنی تب ہم مشکل رہتے ہمیں اللہ کے پاس اتنا جا کھڑ کو مانگتی. تب یہ راستہ نہیں تو دوسرا راستہ ہمیں اختیار کرے تو وہ شرک وہ گناہ یہ کیا جب آپ کو ایک مومن کو زیادہ تر آزمائشاں بھی رہیں گے. یہ دیکھو ترمیزی میں 3000 چلر یہ حدیث میں سعد بن ابی وقاص کو ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول زیادہ تر مصیبتیں کس پر آتی ہے، یعنی زیادہ کو کسے مصیبتیں کو آتی ہیں. ایسا کہتے اس ٹائم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں انبیاء اور رسول یعنی انبیاء اکرام پر زیادہ مصیبتیں کہ ایک نارمل سے ایک بولتے نہیں انبیاء اکرام کی کتنے جنین کے ذکر ہے، نوح، صالح، لوط علیہ السلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں سے بھی آپ کو مصیبتیں تکلیفاں نہیں سوچائیے کیا کتنے تکلیفاں بھر کو انبیاء اکرام کو قتل کر ڈالے ان کے قوم کتنے تکلیفاں کئی کے واسطے انہوں تا تکلیف نارمل لائف انہوں گزار کو رہتے تھے ان کو اتنے تکلیفاں نہیں رہتے تھے کیا اللہ کا دین جا کو سامنے رکھتے اس ٹائم پہ اللہ کے دین کے واسطے جب ہمیں انبیاء اکرام کام کرتے اس ٹائم پہ اتنے انہوں تکلیفاں کو جھیلنا پڑے اتنی تکلیفاں انہوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ احد میں ان کے 2 دانت ٹوٹ جاتے، جو وہ ہیلمٹ انہوں پہنے رہتے وہ جا کو اندر ہیڈے میں جو کلے کے اندر جا کو گھس جاتا. وہاں ابو جہل ان کو آکو سجدے کی حالت میں رہتے اس ٹائم کو ان کو گردن میں چھال ڈال کو اتنا دور کو کستا کہ ان کا جان رتی خود میں نکل جائے گا. ویسا یہ سب بھی انہوں کئی کو آکو وہ مصیبتوں کو سب کو انہوں آکو ایکسیپٹ کر کو انہوں کئی کو جگہ میں صبر کر لگو تھے. جب انہوں تھا ہر ایک انسان کو بھی جب انہیں پیدا ہو جاتا تو اس مصیبتیں مشکلیں رہیں گے، لیکن وہ مصیبتیں اور مشکلوں کو اپنے گناہوں کا کفارہ اپنے گناہوں کا یہ سولیوشن انہیں سمجھیں گا تو انہیں مومن انسان کر کو پیدا ہوگا تو مشکلیں تکلیفیں اسے رہیں گے چھے، لیکن وہ ٹائم کو مشکلیں اس کے تکلیف کئی کو سے آتا کا تو انہیں کرتا سو گناہ کی پلن اس انہیں کرتا سو گناہ کا وجہ ریزن چھے، لیکن اللہ اس کا بھی سولیوشن اللہ بتاتی. کس سے زیادہ تکلیفیں کس سے زیادہ پریشانی رہتی تو انہیں سمجھ لینا کہ اس سے اللہ مجھے کیا کہ سکھانا دیکھتے ہیں، اس سے مجھے کیا کہ اللہ مجھے معاف کر کو اللہ مجھے ابھی بیسٹ ایک انسان بنانا سوچتے ہیں کہنے کچھ ہمیں ایک جگہ میں آپ کو یہ کرنا. اس کے علاوہ ہمیں آپ کو دوسرا راستہ یہ اللہ کا یہ جو ہے کہ یہ ہدایت کا راستہ چھوڑ دال کو دوسرا راستہ ڈھونڈتے سو آپ کو غلطی اللہ پیدا کریے اللہ خالق تب اللہ چاہ کو پیدا کرے سو پروڈکٹ کو کیا ہونا نہیں ہونا کر کو اللہ کو نہیں معلوم کیا، لیکن کو سے ٹائم کو سے وقت میں کب کیا کوئی چیز دینا کر کو اللہ کو پتہ نہیں معلوم، لیکن وہ تب تک ہمیں آپ کو صبر کر کو تب تک آپ کو ہمیں آپ کو اللہ کے راستے میں رہتے سوچا کو ایک مومن کی علامت. تب اس حدیث میں بولتے ہیں انبیاء اکرام آپ کو زیادہ ان کو مصیبت آتی ہے. اس کے بعد کون بولا گا تو اس کے بعد وہ لیول ایمان میں رہنے والے یعنی مومن لوگ تب اچھا ہم نہ پہچان لے جا زیادہ تکلیفیں زیادہ ہم نہ پریشانیاں آزمائش آتے ہیں تو ہمیں آپ کو اللہ کے نزدیک ہوتے ہیں، اللہ ہم نہ اپناتا ہے، ہم نہ پورے گناہوں سے پاک کر کو دھلا کو ہم نہ کو کلین کر کو پاک کرتا ہے. کہنا کچھ ہم یہ جگہ میں سوچنا وہ ٹائم کو کیا گناہ کرتے ہیں کر کو وہ گناہ سے ہمیں توبہ بھی کرنا، وہ گناہ سے ہٹ کو وہ گناہ ہمیں نہیں کرے سکا بھی ہمیں کوشش کرنا سمجھنا تھا کیا. تو اس کے بعد اللہ کے رسول بولتے ہی جو کچھ بھی مصیبت آتی تو وہ آپ کو استقامت کے ساتھ اس کا سولیوشن اللہ کے پاس پتہ انہیں رہا لکھ رہا ہے تو اللہ اسے ایسا پاک کر کو یہ زمین میں سے لیں گا کہ انہیں گناہ نہیں کریا. یعنی جب اللہ کے پاس جا کو ملاقات کرتا ہے شیمپو یعنی ایک دم کیسا بچہ پیٹ کے اندر سے پیدا ہوتا ہے شیمپو بے گناہ رہتا ویسا اللہ اسے لے لیں گا.
तब उत्ता को गुनाह से पाक कर को अल्लाह हमना इतना बेस्ट इंसान बनाता। उसके वास्ते महीना को हमें नेक भी रहना वो जगह में, गलतियां पूरा कर दल को ये नंबी के ये भरोसा करते तो गलती समझ में आता क्या। इसमें बोलती देखो इन्हीं परेशानियां मुश्किलां आने के क्या रीजंस, इससे क्या हमना फ़ायदा होता, इससे हमें कई क्या अल्लाह हमें दे नहीं जाता। अगर एक गुनहगार इंसान है तो उसका ये बेस्ट मौका हिदायत अल्लाह के पास मांगने का। अगर एक इंसान गुनाह ज़्यादा करता है तो अल्लाह को उसे मुश्किलां दे को अल्लाह ये जगह में उसे अल्लाह के रास्ते में फिराने का एक मौका देता है। तू करता है सो गुनाह, ये तू करता है सो गलतियाँ, पलट को अल्लाह के रास्ते में आ जा, अल्लाह के दरबार में आ जा। तेरे जो कुछ भी गुनाह कराया है तू गुनाह कर डाले तो हूँ तुझे आको अल्लाह आको पनिशमेंट नहीं देगा, तुझे बदलने का अल्लाह मौका भी देगा, तुझे सुधरने का अल्लाह मौका भी देगा। उसके बाद भी तू सुधरिया नहीं तो काफिर, तू मुनाफिक, अल्लाह तुझे जहन्नम में से भी करेंगा। समझ में आता क्या। अल्लाह सुब्हान व तआला कितने रहमुर राहिमीन ही। एक गलती एक बंदा करता है तो हूँ उसे पकड़ को हूँ जब्बर सख्त से पकड़ को हूँ उसे पनिशमेंट नहीं देता। अल्लाह उसे मौका बदलने का भी देता है, सुधरने का भी देता है। उसके बाद भी उन्हें वो पहचान को उन्हें वो हमें करते ही जो गलती कर को नहीं समझे सका, उन्हें हूँ गलतियाँ कर ले को रहा तो अल्लाह उसे जहन्नमी बनाता, जहन्नम में डालता। तब वहाँ टर्निंग पॉइंट अल्लाह देते रहते, सुधराने के वास्ते अल्लाह मौका देते रहते। सुधरेंगे नहीं तो हमें काफिर, सुधर जाएंगे तो हमें मोमिन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब फर्स्ट पॉइंट देखो क्या इस यानी एक मुसीबत एक तकलीफ आती तो इससे हमना क्या बेनिफिट्स यानी क्या आपको इससे हमना फ़ायदे होती, क्या हमारे वास्ते अच्छाइयाँ का। फर्स्ट में एक नेक इंसान पर जो दीनदार है, जो नेक है, फिर भी उसके ऊपर नेक मुश्किल आते ही, उन अल्लाह के रास्ते पर चलने के बाद भी उसके ऊपर आपको मुश्किल आते ही, तकलीफ़ आते ही, कल तो उसका क्या वजह का तो अल्लाह उसे जो कुछ भी उन्हें छोटे गुनाह करता वो सब भी दुल्हा को अल्लाह उसे एक एक दर्जा भी बुलंद कर को। आयशा रज़ी अल्लाह की हदीस थी, बोली थी नहीं मैं, ये कांटा भी अगर एक मोमिन कुछ भी है तो वो दर्द में ऐसा बोलता था वो दर्द में भी उसे आको उसका सवाब लिखा जाता ऐसा कर को। सेकंड में आको जो कुछ भी सेकंड फ़ायदा, सेकंड अच्छा मुसीबत आए तो क्या अच्छा करने का, क्योंकि क्या दुनिया की मुसीबतें मोमिन के लिए नियामत हैं। जब उसे एक मोमिन को दुनिया में मुसीबतें आते ही तो उन्हें खुश हो जाना, कहीं का तो उन्हें आखिरत में अल्लाह के पास जाकर मिलता इस टाइम को बेगुनाह जाको पहुंच जाऊंगा। जो कुछ भी छोटे छोटे गुनाह करे ही अल्लाह उसे मुसीबत देखो, तकलीफ देखो, वो तकलीफ उन्हें बर्दाश्त कर को सब्र करता इस टाइम को उसके वो जो छोटे गुनाह ही वो माफ़ होते जाएंगे, अल्लाह दर्जात बुलंद कर लग हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। इस बात थर्ड मैं क्या बोलती हूँ तो जो कुछ भी मुसीबत आती है तो उसका क्या ये कर तो अल्लाह उससे राज़ी होता है। एक तो एक मोमिन के वास्ते हर एक तकलीफ भी झेलना, उसके ऊपर बर्दाश्त करना बहुत ईजी। एग्जाम्पल को इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आई नहीं सो ज़िंदगी में आई नहीं सो तकलीफ आनी, आई नहीं सो मुसीबत आनी, सब कुछ भी आए, लेकिन उन्होंने कैसा खड़े थे वो जगह में। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का वो किस्सा बोलने का वजह क्या, वैसा हमना हमारी ज़िंदगी में भी वैसा प्रॉब्लम है तो हमें वैसा खड़ना, हमें वैसा को अल्लाह के तरफ को फिर को अल्लाह का काम हमें कर लग हो जाते रहना। अब आपको एक एक नेक कुरान पूरी हिदायत है हमारे वास्ते। कुरान में सब क्या है, किस्से कहानियाँ और को किंडल करे मुसलमान या काफिरा, क्या तुम्हारा कुरान को गुजरे हुए लोगों का किस्से कहानियाँ सभी बोलते हैं। अल्लाह को कुरान में अच्छे लोगों की वाक़ियात भी बोले ही, बुरे लोगों के वाक़ियात भी बोले। इसकी वजह क्या, अच्छे बनना है तो अच्छे लोगों के रास्ता चूज़ कर लो। अगर तुम्हें बुरे होना है, तुम्हें बुरे में रहती, बुराई में रहती, तुम्हें काफिरा रहती तो उनको क्या क्या पनिशमेंट मिलता है, कैसा उनको एक रह जाता है
انہوں कैसा आपको दुनिया में भी आखिरत में भी नाकाम होते हैं वैसा तुम्हें होंगे। अब अच्छे होना है तो अच्छे मोमिन लोगों की अनबिया इकराम के रास्ते इख्तियार होना नहीं। हमें आपको बोलते नहीं बुराई में रहेंगे, हमें आपको तो अल्लाह की बात नहीं मानेंगे, अल्लाह बोला सो रूल्स को हमें नहीं फॉलो करेंगे, तो जो लोग इससे पहले आपको वो रास्ता इख्तियार करे जिन्हें वैसा रहे, जिन्हें को क्या पनिशमेंट मिला वो भी अल्लाह को कुरान में दिखेंगे। पूरा कुरान ये अच्छा और बुरा दो भी अल्लाह बता को है, कोसा होना कि हमें चूज कर लेना उसको। समझ में आता है क्या बात? फोर्थ में क्या बोलते हैं इनका, तो मुसीबत आने का क्या अच्छा, तो अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम के हालत रखने का क्या का, तो हमें कैसा सब्र करना। अब अल्लाह आपको कुरान में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में बोले ही, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी, कितने अम्बिया इकराम के बारे में बोले ही, उनकी स्टोरीज कई को बोले ही, उनके वाक़यात कई को बोले ही का, तो हमें भी है वो जगह में उन्हों कैसा चले कि वैसा चलना, कैसा उन्हों सब्र करे कि अब बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या कई को आना सीरत में नहीं, उन्होंने अल्लाह के वास्ते वाक़ा पड़े, अल्लाह के वास्ते तकलीफ़ें बर्दाश्त करे, वो उन्हों मोमिन हो गए, अल्लाह के पास उन्हों को नेक बंदे में शुमार हो गए। उनका कई को हमने स्टोरी बोला, कई को तो हमें भी वैसा रहेंगे, उनको जो तकलीफ आते हैं उन्होंने कहा सब्र करे, उन्होंने कैसा को वो जगह में हैंडल करे, वैसा अगर हमें भी करेंगे तो वो हमें भी ना को बोलते नहीं एक टैबलेट्स का सका हमना दर्द होता तब हमें एक दर्द का मात्रा लेख खाते सन हमना कैसा को कम हो जाता, वैसा दर्द के टाइम को कैसा हमें आपको ईजी से वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना का ये जगह में हमने बोलते। तब पूरा भी हमने सीरत से लोग पूरा भी अच्छे लोगों के बारे में भी बोलेंगे, ख़राब लोगों के बारे में बोलेंगे, अच्छा रास्ता भी बता को ही, ख़राब रास्ता भी बता को ही। अब ये जगह में हमें चाको चूज़ करना सो कोसा करना का क्या, तब बाको अल्लाह ताला कुरान में भर को आया था सब्र करने के बारे में बोल को ही, मुश्किलें कई को आते बोलते हैं, हमना परेशानी आती का तो क्या वजह, ये सब भी आपको कुरान बोलता है। हम ना हिदायत होना तो कुरान को हिदायत ठा लियो, अनबिया इकराम की ज़िंदगी को हमारा आइडियल बना लियो, ये हमारा हिदायत का रास्ता। हर एक परेशानी में भी हो, गम में भी हो, अल्लाह का दरबार अल्लाह का ये चाको हम ना को सोल्यूशन समझ में आता। इसमें देखो सूरतुल बकरा आयत नंबर 155 में अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी जब मोमिन लोगों को कोई भी मुसीबत कहते सो क्या, तकलीफ़ कहते सो क्या, जो चीज़ हम ना नहीं होना कर सोचे रहेंगे वो हो जाएगा, जो चीज़ को हमें पसंद नहीं करेंगे वो होगा, ये चाको तकलीफ़। अब एग्जाम्पल को हमें आपको बोलते नहीं अल्लाह को हमने अच्छी हैसियत देखो रखना कर को हमें सोचे रहेंगे, अल्लाह हमने भर को औलाद देना कर को सोचे रहेंगे, अल्लाह हमने भर को बोलते नहीं माल देना को रहना कर को सोचे रहेंगे, लेकिन हमारे ज़िंदगी में वो नहीं रहेंगा, बच्चे भी नहीं रहेंगे, माल भी नहीं रहेंगा, हमें कैसा गुजारना लाइफ कर को बोल को सोचे रहेंगे, वो लाइफ हमना नहीं मिला रहेंगा, उसके अपोजिट रहेंगा। हमें अच्छा इज्जत से जीना सोचे रहेंगे, लेकिन हमना पैसा वो सब भी नहीं सोचना, हमें आपको हमारे रिश्तेदार हमना सब भी आपको इंसल्ट कर को हमने एक वैल्यू नहीं सो रखे रहेंगे, हमने वो पसंद नहीं आएगा, वो चाको तकलीफ़। ओके क्या, अब ये चीज़ हम सब भी आपको एक तकलीफ़ देतेंगे तो भी अल्लाह अच्छा, एक हमने आपको खुशी देती हमें अच्छे हालत में हिंगे तो भी अल्लाह अच्छा। ओके क्या, अब एक जनिया को अल्लाह अच्छा फुल माल देखो है तो वो माल भी कौन दिए सो अल्लाह, वो माल हमारा नहीं अल्लाह के पास, हम अल्लाह हमने दिए ही सो अमानत, आज है तो सामान चल जाएगा। समझ में आता, वो माल को वो अच्छे इस इंसान को देखो हमें फील करते उसे भी अल्लाह तू उसे दिया है, वो दिया यानी उसके पास जो कुछ भी है वो तुम्हें दिए ही सो नहीं क्या, अब मेरे पास नहीं है वो भी आपको तुम्हें दिए नहीं सो, जैसा उसे दिए ही वैसा मुझे दियो। ओके क्या, तब एक अच्छाई भी अल्लाह देने वाला, एक बुराई भी अल्लाह देने वाला कहते टेम्पो हम ना कहीं को परेशान होना नहीं। अब हमें आपको तकलीफ, हमें कहीं को परेशान होना, कहीं को डिप्रेशन में जाना, कहीं को हमें आपको बहुत वेक्स हो जाना, कहीं को हमारा दिल दुखना नहीं, अल्लाह नहीं एक तकलीफ हम ना आती है तो भी अल्लाह कई के वास्ते देते हैं अल्लाह, दो रीज़न हमें देखे थे, हम ना एक तकलीफ़ की एक मुसीबत आती है तो हमें करे से छोटे छोटे गुनाह माफ़ हो जाना,
ओके क्या नहीं कर बोले का तो हमारे दर्जों को अल्लाह को बुलंद करता रहता है। एक एक तकलीफ को भी इसे भी आपको हम ना को क्या करते रहेंगे, अल्लाह अजर देते रहेंगे। ये दो कॉन्सेप्ट पता मुझे, ये दो कॉन्सेप्ट के ऊपर भी हमने क्या होना, ईमान होना। फर्स्ट दो भी अल्लाह देने वाले, तब कई को हम ना को परेशान होना। अब औलाद भी अल्लाह देने वाला है, अब औलाद नहीं है का तो हमें उसमें कहती हुई अल्लाह हमने दिए नहीं का तो उसमें कहती हुई बेस्ट रंगा कर कुछ हमें सोचना सिवाय हमें दूसरा रास्ता इख्तियार करते सो कि अल्लाह को गालियाँ देते सो कि हमें वेक्स होते सो कि पूरा गलती। समझ में आता क्या? जब हमें एक परेशानी होती है तो हमें सोचना अच्छा क्या कि हम ना अच्छा होने जाता है, ये परेशानी भी अल्लाह दिए हैं, तब भी हमें अल्लाह के पास दरबार में जाको, अल्लाह के पास दोनों हाथ ठको लाई क्या है अगर को मुझे नहीं मालूम, ये आजमाइश है कि ये मेरे गुनाहों की नहुसत है कि नहीं मालूम, अल्लाह तुम्हें उसे दूर करना। अगर ये आजमाइश है तो अल्लाह इसमें मुझे तुम्हें क्या करो, स्ट्रांग से खड़ो, ये आजमाइश में मैं पास होना, ये एग्ज़ाम में मैं पास होना नहीं, ये मेरे गुनाहों की वजह से मुझे प्रॉब्लम्स होता है, क्या भी हो प्रॉब्लम्स, अल्लाह मुझे माफ़ कर डालो, अल्लाह मुझे आपको तुम्हें एक्सेप्ट कर लियो, ये एक गुनाह में मालूम हो कि मैं मालूम नहीं सुखी मैं कर डाली, ये मुझे तुम्हें माफ़ कर डालो। ये दो हमें करने होंगे। ओके क्या अब माल है उसे देख को हमें आपको फिक्र करते उसे भी अल्लाह उसे तू दिया मुझे भी तू दे। समझ में आता क्या? इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। ओके क्या तू चाको हर चीज़ का भी मालिक है, तू छमना को पैदा भी करे। अब हम उसके बाद उस पलट को तेरे कुदन आने भी हमें तेरे कुदन ही चाहना, दूसरा काम भी जाना नहीं होगा। जो गरीबी की ज़िंदगी हो, वो चाहे बच्चे नहीं सो ज़िंदगी हो, क्या भी परेशानी की ज़िंदगी हो, वो हम एक हमारे गुनाहों की वजह से नहीं कहते तो अल्लाह चाको वो हमने दिए रहेंगे कि कहते दुनिया में हमें सभी सोचते से हमें सभी मिल जाएंगे नहीं क्या, तब अल्लाह चाको ये चीज़ दिया है, अल्लाह चीज़ से दूर भी करेंगे। एक मीनिंग आता जो कुछ भी ये परेशानियाँ इन सब भी हैं अल्लाह दूर करेंगे। अल्लाह दिया यानी हमारे गुनाह की वजह से अल्लाह हमने आजमाने के वास्ते दिया है, और इसे ठाको हमने फिर भी हमने पाक कर को हमने परेशानियाँ नहीं सो रखने वाला भी अल्लाह तब सॉल्यूशन प्रोडक्ट मशीन अल्लाह हमें प्रोडक्ट्स बतान तब अल्लाह को मालूम एक गुड़ी हमें कैसा बना को उसे कैसा वो जगह में अंखी रखना, वो जगह में कैसा बाला रखना, वो सब भी हमें बनाती, वो जगह में क्या मिस्टेक करेंगे को भी हम ना मालूम है, उसे कैसा बराबर करना भी हम ना मालूम करते हैं। वो अल्लाह हमारा खालिक है, हमें उसके मखलूक है, अल्लाह हमारा लीडर यानी अल्लाह हमना बनाने वाला, हमें उसके प्रोडक्ट, तब हमना क्या होना क्या नहीं कर को अल्लाह को मालूम। अच्छा समझ में आता क्या? तब आपको हर एक मुसीबत हर एक परेशानी हमारे गुनाहों की वजह से हो, चाहे अल्लाह हमना क्या की आजमाने के वास्ते दिया हो, सॉल्यूशन अल्लाह के पास ही मांगना, दूसरा किसके पास भी हमें नहीं मांगना। और एक चीज़ हमारे पास नहीं है तो भी देने वाला भी अल्लाह, एक चीज़ हमारे पास है तो वो भी देने वाला अल्लाह। कब? अल्लाह। अब आपको हम जो या को अल्लाह ताला इतना एक बोलते नहीं हम ना को ये जगह में डरा को ये जगह में ऐसा बनूनो को तुम्हें कहती तुम्हें आँखों शैतान के भाई बनती क्या ऐसे ये कैरेक्टर कर को ये चीज़ कर को बोलती कहते टाइम पो वो चीज़ भी उतना पावरफुल रहती, वो चीज़ भी उतनी बड़ी गलती रहती करको ये जगह में हमें आपको पहचान ला। अब हमें पूरे सोचते रहेंगे फजूल खर्ची तो हमें काम करते ही बेकार हमें क्या करती घर को बोल को ये बड़े बड़े चीज़ों को आपको अल्लाह ये जगह में बोलते हैं क्योंकि क्या बड़े बड़े चीज़ों में जो दूसरों को ज़रूरत रहती वो जगह में तुम्हें उनको दिए नहीं सका, तुम्हें बेकार करते रहेंगे। यानी फजूल खर्ची का माना आपको जो ज़रूरत से भी ज़्यादा तुम्हारे पास है, माल भी रंदे पर खाना भी रंदे पैसा भी रंदे कपड़े भी रंदे पानी भी रंदे तुम ना आपको ज़रूरत के तरह था कि वो ज़रूरत से उंगल को तुम्हारे पास रहता उस टाइम को तुम्हें क्या करेंगे वो चीज़ को आपको कैसा इसे यूज़ करना अगर मालूम नहीं सो हमें वेस्ट करते उसके वास्ते चल रहा आपको ईजी से एक आसान से एक तरीका क्या बोले ही जो तुम्हें खा को पी को जो है कि वो चीज़ तुम्हें जिसको नहीं है कि जो नहीं कि जिसके पास ये चीज़ नहीं कि वो उनको दियो कर बोल को एक अच्छा टिप एक अच्छा चीज़ आपको अल्लाह हमने सिखा को दिए नहीं क्या। अल्लाह आपको जहाँ जहाँ भी आपको माल के बारे में कि पैसे के बारे में कि खाने के बारे में क्या आता कि वो जगह क्या बोलते तुम्हें भी खाओ तुम्हें भी पियो तुम्हें भी ओढ़ो तुम्हें भी पहनो दूसरों को भी दियो कर को अल्लाह आपको ये बात करें सो चीज़ फिनिशिंग करेंगे नहीं। तब तुम्हारे पास हद से ज़्यादा है तो जितना तुम्हारा यूज़ हो जाता है कि उतना यूज़ तुम्हें रख लो को वो दूसरों को तुम्हें देना इस जगह में
ये दूसरे को नहीं देते, ये जगह को हमें दूसरे को देने से कंजूसी कर को ये दिए तो कांति कम हो जाएगा कि ऐसा सोच को तुम्हें अपने पास रखते इस टाइम पर तुम ना को शैतान को इसे वेस्ट करने के थॉट्स तुम ना को डालेंगा नहीं क्या। इसकी पहले क्या है तुम देखो, तुम्हारा जो कुछ भी माल दौलत है कि वो तुम्हें आपको गरीबों में, तुम्हारे रिश्तेदारों में, तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हें ये दियो कर को अल्लाह बोल को इसके पहले क्या आयत में नहीं क्या, ये आपको अल्लाह का हुक्म वेस्ट करो कर को बोल को हम ना ख्याल डालता सो वेस्ट करने रखता सो ये शैतान का हुक्म, ये शैतान के काम, ये चाको ये जगह में अल्लाह बोलते हैं। ओके क्या, हमें आपको आज ज़्यादातर आपको फजूल खर्ची जो बेकार वेस्ट करने का ज़्यादा किस में करती हूँ तो शादियाँ में करती हूँ। अभी इसके पहले से हमें देखे थे तुम्हारा जो कुछ भी माल है कि वो तुम्हें क्या करो तुम्हारे रिश्तेदारों में दियो, गरीबों को दियो, जो तुम्हारे पास हाथ फैला को मांगता कि उसे दियो कर को अल्लाह बोलते ही हुक्म नहीं क्या। अब ये जगह में हमें क्या करती नाम को इज्जत से रहने के वास्ते, चारों में हमें आपको ट्रेंड होने के वास्ते हमें वो क्या करती हमारे पास रहता सो माल है, हमें आपको बेकार शादियों में वो खाने उतने वेस्ट होती हैं उसमें, वो रकम कर खाना कहीं को देते रकम खाने रखते तो हमारा एक पब्लिसिटी होगा उनके शादी में तब कर रहे उन्हें ऐसा करे कर कोई ऐसा बात के वास्ते। समझ में आता क्या, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें आपको खजूर से वलीमा करते थे, तस्बी आपको सादगी से कर को ये हमना कर को दिखा को गई। अच्छा मिनिमम एक बोलते नहीं आपके आदमी को उनके पेट वो दावत को आपको पेट भरे तो बस उतना आपको हमें करे तो बस उनकी क्या। आज हमें आपको ट्रेंड होने के वास्ते, हमें फेमस होने के वास्ते, हमारा आयुष व इश्रत हमारा मालदारी दिखाने के वास्ते, हमें इतने पैसे वाले कर को दिखा लेने के वास्ते आज हमें करते सो फजूल खर्ची में पहला स्टेप शादियाँ। कितने हमारे शादियाँ वो हमारे भाई की बेटी की, हमारी बहन की बेटी की, बहुत दिनों से पैसा नहीं कर को बोल को शादी हुई नहीं सो बैठी रहेंगी वो बच्ची, उसके सामने उम्र में भी छोटी रहेंगी लेकिन इनसे शादी करते रहेंगे, वो भी कैसा अभी एक दो बच्चा को शादी करे जब उतना वेस्ट कर को वो जगह में शादी करती, तब ये जगह में आपको हेल्प कर को वो बच्ची को उठा को करने की जिम्मेदारी में अल्लाह तुमने रखा है, उतना दौलत तुमने दिया है, उतना पैसा तुम्हें अल्लाह तुमने दिया है, लेकिन वो तुम्हें इज्जत के वास्ते तुम्हें आपको वो जगह में आपको फेमस होने की वजह से वो बच्ची कितना वो जगह में कुमलती रहेंगी, उम्र में तुम्हारी बच्ची से भी बढ़ेगी, पैसा ये एक चीज नहीं करने से वो बच्ची बहुत सालों से बैठी है कोने में नहीं क्या। ये सभी चीजें आपको ये जो हमारे पास आपको इंसानियत जो एहसान करना मदद करने का जो ये सिफत शैतान उठा डालिया उठाना उसका टारगेट था वो उठा था, लेकिन वो चीज़ क्या करे उठा डालिया हमारे पास से। अब देखो ये अबू दाऊद की हदीस में आता अल्लाह के रसूल बोलते ही लोगों में ऐसा तौर तरीका आ गया है, उनके पास आपको हया शर्म सब कुछ भी चला गया है, वो नहीं रहने से उन्हें क्या होना तो भी करती उन लोग वैसे किस्म के आदमियाँ हो गई हिंग करने का एक नहीं। तब आपको हमारा जो माल दौलत है कि हम ज़्यादा वेस्ट करती हैं तो आज के ज़माने में ट्रेंड के हिसाब से शादियाँ में बहुत ज़्यादा क्या। अब अल्लाह बोलता तुम्हारे रिश्तेदारों में तुम्हें मदद करोगे तो ये जगह में आपको वो बच्ची को हमें 4 पैसे डाल को 2 बच्चों को शादी कर सकती हो, इतना वेस्ट होता है एक शादी में। अब वो जगह में आपको हमें उनका क्या हक अदा करें, रिश्तेदारी का क्या हक अदा करें। अल्लाह ताला बोलते रिश्तेदारी के बारे में मैं तुम्हें सवाल क्या दूँगी, क़यामत के दिन पूछूंगा उनको तुम्हें क्या जवाब देंगे। ये सब भी हमारे अंदर ख्याल नहीं रहेगा, ये नहीं डालूंगा ख्याल शैतान खाली आपको फेमस ऐसे चीज़ में चाको हम ना शैतान ये करेंगे, ये शैतान का काम। समझ में आता क्या। अभी देखो सूरतुल आराफ आयत नंबर 31 में अल्लाह क्या बोलते हैं, ए बनी आदम यानी आदम के औलाद तुम्हें आपको बोलते नहीं ज़्यादा जब भी किसी मस्जिद यानी मस्जिद को जाओ वो जो नेक कमाई की वो करो, उसके साथ साथ अल्लाह जो तुम्हें माल और दौलत दिया है वो खाओ पियो, दूसरों को भी दियो, दूसरों को भी मदद करो, इसराफ ना करो क्योंकि अल्लाह ताला इसराफ करने वालों को पसंद नहीं करता। अल्लाह ताला अपने कैटेगरी में से अपने नियामतों में से उनको उठा को फेंक डालेंगा, काम फेंकेंगा, शैतान कहाँ जाएंगा शैतान कहाँ रहेंगा वो जगह में हमें रहेंगे। ये एक चीज़ जो फजूल खर्ची बेकार करने में बहुत सारे चीज़ें आपको ये जगह में मार खाते, रिश्तेदारी मार खाती, वक्त मार खाता, दूसरे आपको कितने की बच्चे गरीब बच्चे सभी आज आपको भूखे भूखे बैठे हैं, लेकिन हमारे घर में हमें खाते से भी ज़्यादा हमारे डस्टबिन आपको खाना उतना ज़्यादा हमें वेस्ट करते।
کیا بولتے اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں، جو دیا میں مال میرا مال لے تو میں دوسرے کو دوں، ایسا نہیں بولتے، تمہیں میں جو مال بھی میں تم نہ دیا ہوں اس میں کھاؤ پیو، جو بھی ایکسٹرا ہے جو تمہیں ٹرینٹ کے نام سے جو ویسٹ کرتی دیکھو چیز، وہ چیز کتنے کی جنے وہ چیز کو ترس لے کو بیٹھے ان کو دیو۔ ابھی دوسری جگہ میں اللہ بولتا ہے کس کا مال، میں دیا سو مال میرے راستے میں دینا، تم نہ کیا، ایسا بھی اللہ کو پوچھتے ہیں، نہیں اللہ سمجھا کو پوچھتے بہترین انداز میں ایک کو پوچھتے، پھر بھی اس سے بھی پوچھتے یہ کس کا مال، یہ کون دیے، اس کا راستہ کون بنائے۔ آج غیر مسلم بھی ڈرتے ویسٹ کرنے، آج ہمیں مسلمانہ کرتے کئی کے حساب سے ٹرینڈ، تعریف کے واسطے، فیمس ہونے کے واسطے، عزت ہونے کے واسطے، چار جنے ہم نے کیا عزت دیں گے، چار جنے ہم نہ کون بھی عزت دیں گے۔ اللہ اگر عزت دینا سوچے تو پوری دنیا کے آدمیاں کے دل میں اللہ ہمارے اوپر عزت دیں گا۔ وہ ایک حدیث آتی نہیں کیا، جب ہمیں اللہ کو پسند کریں گے، جب اللہ کے حکم کو ہمیں پسند کرنا ہے، نہیں ہمارا پورا بھی اللہ کر کب ہمیں ہو جاتی کہ اللہ بھی اس سے محبت کرنے شروع کر ڈالتا، جو بھی دنیا میں ہی سب کے دلوں میں بھی وہ اس کے اوپر محبت اللہ خود بخود ڈالتا، بولتا ہے تمہیں کیا کماتے ہیں، ایسا سے بھی ویسٹ کر کو تمہیں کیا کماتی، عزت اللہ دیتا خود، کب اللہ کا راستہ اللہ کی بات سنتے شم اللہ خود دیں گا تمہیں عزت، عزت لینا بھی دینا بھی، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت دینے والا بھی اللہ اچھے، بے عزتی کرنے والا بھی اللہ اچھے۔ ایک جنے ہم نے انسلٹ کرتی گا تو ان کے ہاتھ سے نہیں ہوں گا، وہ جگہ میں اللہ چاہے تو ہم نہ انسلٹ کرنے بھی ہوں گا۔ یہ چیز بھی خود اللہ قرآن میں بول کو ہی، قرآن کو ہمیں کیا انداز میں پڑھتے ہیں، یہ چیز ہے قرآن، یہ چیز ہے ہدایت قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ ہم نہ سب تمام کو بھی آکو اللہ فضول خرچی سے، اللہ جو بیکار چیزیں ہیں اللہ کو نہیں پسند ہے چیزیں اللہ ہم نہ کرنے سے بچان دے، شیطان کے راستے میں جانے سے بچان دے۔ اللہ تعالیٰ ہم نہ جو کچھ بھی اللہ حکم دیے ہیں اس پر ہمارا عمل کرنے کی توفیق دیں دے۔ بولتے نہیں مال اللہ زیادہ دیا ہے، پیسہ زیادہ دیا ہے کو تو اسے اچھے طریقے میں ہمیں یوز کرنا کو تو صدقہ و خیرات کرنا چاہو اچھا طریقہ، اس کے برعکس اس کے اپوزٹ فضول خرچی ویسٹ کرنا وہ آپ کو گناہ میں لے لگ جانے کی چیز اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔